Father, we come before your presence in Jesus' name and thank you once again for this wonderful morning, and we commit the rest of the session into your hands. Master, bless us and speak to us. Jesus, we proclaim you are our Lord, you are our Savior, you are the King of Kings, you are the Lord of Lords, and we declare that we will give you glory, honor and praise. Holy Spirit, without you we can't do anything. Come and help us in ministry. Right now we take authority in Jesus' name and we bind Satan and his works. We command him to go under the feet of Jesus Christ of Nazareth. Be with us, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Today, first of all, we would like to refer some of the definitions about family. और आज हम पारिवारिक जीवन के जो डेफिनेशंस है उसको देखेंगे। What is the meaning of family? फैमिली जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है? There are so many definitions given in the Word of God. और परिवार क्या है इसके बारे में बाइबल में बहुत से डेफिनेशंस दिया गया है। Ephesians chapter 3 and verse 14, we see that all the families are originating from God the Father. और एफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 14 में हम देखते हैं हर एक परिवार जो है परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। For this reason I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, from whom the whole family in heaven and earth is named. हर एक घराना का नाम रखा जाता है परमेश्वर के द्वारा। All the families in heaven and on earth. हर एक परिवार जो स्वर्ग में और धरती पे है उसका शुरुआत परमेश्वर से है। In one sense, the first and the most important definition in the Bible, we see families are considered as the heaven on earth. और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं इस प्रकार पूरे उसको पढ़ने से समझ सकता है कि परिवार को इस दुनिया में स्वर्ग जैसा रखा गया है। The first definition of family is heaven on earth. और परिवार को हम लोग डिफाइन करने से सबसे पहले ऐसे बोल सकते हैं कि परिवार जो है वो इस धरती का स्वर्ग है। In Deuteronomy chapter 11 and verse 21. और व्यवस्था विवरण उसमें हम लोग ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 11 में देख सकते हैं। Almost the same meaning is coming there. Families are considered as heavens on earth. और जब व्यवस्था विवरण उसका चैप्टर 11 वर्स 21 में देख सकते हैं ऐसा अर्थ आता है कि जो परिवार है वो धरती में स्वर्ग है। In my version it is written that your days and the days of your children may be multiplied in the land of which the Lord swore to your fathers to give them, like the days of the heavens above the earth. इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दुर्गार्य हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। There it is written, families are the heaven on this earth. और इसको जब हम पढ़ते हैं दूसरे वर्शन्स में ऐसा देखते हैं कि जो परिवार है वो इस धरती पे स्वर्ग है। We are all waiting to go to heaven. हम सब स्वर्ग जाने की तैयारी में हैं। We are expecting the return of Jesus Christ. हम सब यीशु मसीह के वापस आने का दोबारे आगमन का हम इंतजार में हैं। Where we can see a model heaven. आज हम धरती में एक सच्चा स्वर्ग कहाँ पे देख सकते हैं? Heaven is like what? अगर हम सोचते हैं ये स्वर्ग कैसा है? Some good models for heaven. एक स्वर्ग कैसा जगह होगा उसके लिए कहाँ हम लोग देख सकते हैं? One of the best model God want to make each family a small heaven on earth. और परमेश्वर जो है हर एक परिवार को एक स्वर्ग इस धरती में एक छोटा छोटा स्वर्ग के रूप में बनाना चाहता है। The opposite of heaven is hell. और हम जानते हैं
स्वर्ग का विपरीत है नरक। Usually, either your family life is a heaven on earth, otherwise your family life is a hell on this earth. और हम ऐसे देख सकते हैं, या तो आपका परिवार इस संसार में, इस दुनिया में एक स्वर्ग के रूप में है, या तो आपका घर, आपका परिवार इस दुनिया में एक नरक है। In some families, we can see the mixture of heavenly atmosphere and hellish atmosphere. और कई परिवारों में ये दोनों देख सकते हैं। कुछ समय वो लोग, उनका घर पूरा स्वर्ग जैसा बन जाता है, और उसके थोड़े देर के बाद वो पूरा वही घर नरक बन जाता है। In believers' life, their family may be during the fasting days, it will be like heaven on earth. और हमारे जो प्रभु के लोग हैं, उनके कई घरों में जब फास्टिंग के दिनों में हमारा घर एकदम स्वर्ग जैसा बन जाता है। When some pastors are coming from outside, during those days, our family life is like a heaven on earth. जब हमारे कुछ स्पेशल मीटिंग्स होते हैं, बाहर से पास्टर लोग आते हैं, हमारा घर में बहुत शांति, एकदम स्वर्ग जैसा हो जाता है। But after few days again, some hell atmosphere is coming back to your family life. लेकिन कुछ दिनों के बाद ही फिर से वो नरक का अनुभव हमारे घर में आ जाते हैं। Heaven is the place where we see perfect harmony. और स्वर्ग ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत सुंदर मिलाव को देखते हैं। Everybody say the word harmony. सब बोलिए सुंदर मिलाव। Please write down that word on the board. Harmony. हार्मनी। This word is very important. Everybody say harmony. सब बोलिए हार्मनी। हाथ पकड़कर पड़ोसी को बोलो हार्मनी. अपने पड़ोसी को हाथ पकड़कर बोलिए हार्मनी। So when we go to heaven, जब हम स्वर्ग जाएंगे, we can see harmonious atmosphere in heaven. वहाँ पे बहुत सुंदर मेल मिलाव को हम स्वर्ग में देख सकते हैं। The environment of heaven is made of joy. और जो स्वर्ग में जो उसका जो एटमॉस्फेयर है, वो पूरा खुशी है। Always there will be joy. हर दम वहाँ पे खुशी है। And the atmosphere is harmonious. और बहुत ही मेल मिलाप में वहाँ पे आगे चलते हैं। Harmony, the meaning of harmony, a state of peaceful existence and agreement is what is called harmony. अगर हार्मनी जो वर्ड है उसको हम लोग उसका मीनिंग बोलेंगे तो ऐसा बोल सकते हैं, बहुत ही शांति का जो समझौता है। So in harmony, two things are coming: peace and agreement. और जो हार्मनी जो शब्द है उसमें दो बातें आते हैं, एक तो शांति और दूसरा समझौता। Everybody say peace. सब बोलिए पीस, Agreement. एग्रीमेंट। जोर से बोलिए peace, पीस, agreement. एग्रीमेंट। So where there is harmony, you can see these two good things, peace and agreement. और जहाँ कहीं ये सुंदर मिलाव है, वहाँ पे हम ये दोनों बातों को देख सकते हैं, शांति और समझौता। This word harmony comes in music. और ये जो हार्मनी जो शब्द है, वो हम ये जो म्यूजिक है उसमें हम देख सकते हैं। In music there is harmony. जैसे हम लोग जब म्यूजिक सीखते हैं, हम उसमें हार्मनी को सीखते हैं। I just note down the definition in music field. Harmony, the simultaneous combining of pitches to produce chord, is considered a basic component of music. और ऐसे हार्मनी का जो शब्द का जो अर्थ जब ढूंढा, ऐसा मिला बहुत सारे पिचेस जो होते हैं उसको मिला के मेल मिलाव करके बहुत सुंदर एक कॉर्ड मिलना को हार्मनी कहते हैं। So our dear friends, they are singing the songs here. हमारे जो भाई बहन लोग हैं यहाँ पे, उन लोग हमारे लिए सुंदर गाना गाते हैं। Keyboard is played. और यहाँ पे जो कीबोर्ड उसको हम प्ले करते हैं। Guitar is played. और गिटार को प्ले करते हैं। Brother is beating the drum. और अभी ड्रम भी हम उसको यूज कर रहे हैं। When this music comes out through these boxes, there is a harmony. और जब ये विभिन्न प्रकार का जब म्यूजिक ये बॉक्स के द्वारा जब बाहर आता है, बहुत सुंदर एक मेल मिलाप है। There is a combination. उस सब मिलकर करते हैं।
It is so sweet. और वो बहुत ही सुंदर है। That is what is harmony. उसी को हम मेल मिलाप कर कहते हैं। If there is no harmony in music, अगर उसमें कोई ये म्यूजिक में कोई समझौता नहीं होता keyboard is going in one pitch और कोई मिलाव नहीं है, कीबोर्ड एक पिच में जा रहा है and singers are singing in another pitch, और ये गाने वाले लोग दूसरे पिच में गाना गा रहे हैं guitar is in another pitch, और गिटार जो बजाते हैं वो दूसरे पिच में बजा रहे हैं, that music is not harmonious, it will be horrible. और वो जो म्यूजिक है आप सुनने से आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत ही एकदम मुश्किल हो जाएगा आपको। That is what is the meaning of harmony. वही हार्मनी जो शब्द है उसका अर्थ है। Where there is harmony, there is peace and agreement. और जहाँ कहीं भी ये हार्मनी है, मिलाव है, वहाँ पे शांति और समझौता है। The first family was in paradise. और जो सबसे पहला जो परिवार था वो पैराडाइस में था। In Genesis chapter 1 and 2 we see after God created man and woman, they were in paradise. और हम उल्पत्ति के किताब उसका 1 और दूसरे अध्याय में देखते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष को सृष्टि किया, उसको पैराडाइस में रखा। And paradise is part of heaven, so there was perfect harmony. तो हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि पैराडाइस जो है वो एक स्वर्ग का एक भाग था, उसलिए हम बोल सकते हैं कि उन लोग स्वर्ग में थे। There is no disagreement in paradise. और पैराडाइस में उन दोनों के बीच में कोई वाद विवाद नहीं होता। And we see in chapter 2 when God made woman out of man, man is making a statement about woman in chapter 2 and verse 23, and Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." और जब हव्वा को जब आदम के अंदर से निकाला गया है तो इस प्रकार से वो कहता है कि ये तो मेरी हड्डी में से हड्डी है, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा। Where was woman earlier? ये जो स्त्री है, नारी है, वो पहले कहाँ था? When God created man and woman, He created them together in one sense. और हम एक प्रकार में बोल सकते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री, पुरुष और स्त्री को एक साथ बनाया। Still was 23, woman was inside this man. और हम लोग ये जब पढ़ते हैं वर्स 23 तक हम देख सकते हैं कि ये मनुष्य ये जो आदमी है उसका अंदर ही ये स्त्री छुपा हुआ था। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody is hearing me? आप सब सुन रहे हैं? Attentive? आप सब ध्यान से सुन रहे हैं? Understanding? आपको कुछ समझ में आ रहा है? Hallelujah. Wave your hands. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ताली बजाकर धन्यवाद बोलिए। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So woman was inside man. और हम ये देख सकते हैं कि जो नारी है वो पुरुष के अंदर था। When God created man and woman, जब परमेश्वर पुरुष को और स्त्री को बनाया, it is written in chapter 1 and verse 26. और वो उल्पत्ति के किताब चैप्टर 1 और वर्स 26 में लिखा है, Then God said, "Let us make man in our image according to our likeness." और परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अनुसार अपने समानता में बनाएंगे। And in verse 27, और उसका वर्स 27 में, so God created man ऐसे परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको अपने किया, नर और नारी उसने मनुष्य की सृष्टि की। When God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, it is written here, यहाँ पे ऐसा लिखा है, God created them.
ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उनको, दो लोग, उनको बनाया। Plural. वहाँ पे बहुवचन है, But we only see Adam. वहाँ पे तो बस हम आदम को देखते हैं, But it is written here, लेकिन वचन में लिखा है God created male and female. He created them, male and female. लेकिन यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया। पुरुष और स्त्री को बनाया। So where was this स्त्री? तो ये नारी जो है वो कहाँ था? Inside Adam. ये जो आदम के अंदर था। And you know, in that verse 27, और जो- 28, God blessed them. It is again plural. और वर्स 28 में जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर 1 वर्स 28 में फिर से लिखा है कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी। And there also comes plural. और वहां पे भी हम बहुवचन को देखते हैं। God created Adam, परमेश्वर ने आदम को बनाया, but it is written God blessed them. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उनको, बहुवचन में लिखा है, उनको आशीष किया। To whom God commanded be fruitful? किसको परमेश्वर ने बोला कि तुम फलो फूलो? Male and female. जो पुरुष और स्त्री को बोला। But now we don't see a female in chapter 1. लेकिन अभी तक चैप्टर 1 में हम एक स्त्री को नहीं देख सकते। Yet God is blessing them. लेकिन अभी परमेश्वर उनको, दोनों को प्रभु आशीष करता है। Operation took place in chapter 2 and verse 21. और जो सच्ची में जो ऑपरेशन हुआ वो तो चैप्टर 2 में हुआ। Till that moment, तब तक in Adam's personality itself, आदम के जो अंदर ही, he himself was male and female. In one sense, he was carrying two personality. Or it is better to say, inside Adam, Eve was there. और हम एक तौर से बोल सकते हैं कि आदम के अंदर ईव छुपा हुआ था। Praise the Lord. Hallelujah. And now I want to ask one question. What was the name of woman when God created woman? आप में से कोई बोल सकते हैं कि ये जो नारी को बनाया, उस नारी का नाम क्या था? Tell me. आप बोलिए। Huh? Eve. How many of you say that when God created woman, woman's name was Eve? How many of you say? आप Please में lift से up your कितने hands. लोग बोलते हैं कि जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, उसका नाम ईव रखा गया? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। हाथ उठाइए। Okay. Put down. Only few people. And the second option, second choice. When God created woman, her name was Adam. How many of you believe? Please lift up your और hands. आप में से कितने ये विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, उसका नाम आदम था? ये कितना लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाइए। Few are there. You are right. In chapter 5 and verse 3 it is written. ये जो दूसरा बार है जो बोला है वही सही है। जब हम लोग उल्पत्ति के किताब पढ़ते हैं, उसका चैप्टर 5 वर्स 7 में, Verse 3 or verse 2, sorry. Chapter 5 and verse 2. और चैप्टर 5 उसका वर्स 2 दूसरा पद में, And he created the male and female and blessed them and called them mankind. It is in my translation it comes mankind, but in original Adam. translation it Adam. comes Adam. God called them Adam. Male's name was Adam and female's name was also Adam. This translation, some translations are not right. In original translation in Hebrew it comes, he called them Adam. Yes. और उल्पत्ति का किताब 5वां अध्याय उसके सेकेंड वर्स में ऐसा लिखा है, उसने नर और नारी कर मनुष्य की सृष्टि की और उसने आशीष दिया और उस सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। Praise the Lord. Hallelujah. So husband's name was Adam and wife's name was Adam. तो आप बोलिए कि हस्बैंड का नाम आदम था, वाइफ पत्नी का नाम भी आदम था। Why?
क्यों ऐसा रखा? Because there was perfect harmony. क्योंकि वहां पे एक बहुत सुंदर मिलाव था। Amen. आमीन। Praise the Lord. And after the fall only the new name Eve came to woman. और ये जब उन लोग पाप में जो गिर गया, उसके बाद ही ये स्त्री को जो है ईव नाम दिया गया। In chapter 3 चैप्टर 3 में जब हम आते हैं and verse 20, उसका 20वां पद में, and it is written, and Adam called his wife's name Eve. इसमें लिखा है आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। It is not a God given name. वो परमेश्वर से दिया हुआ नाम नहीं था। It is her husband gave that name. ये उसका पति जो पत्नी को नाम दिया है वो है हव्वा। Adam called his wife Eve. और आदम ने अपने पत्नी को नाम दिया हव्वा। It took place after the fall. और ये कब हुआ? उन लोग पाप में गिरने के बाद ये बात हुआ। Both of them fell from the glory of God. दोनों स्त्री पुरुष परमेश्वर की महिमा से गिरने के बाद God commanded, God told them to get out of paradise. परमेश्वर ने उन दोनों को बोला तुम लोग ये पैराडाइज से बाहर निकलना है। They were thrown out of paradise और वो पैराडाइज से, स्वर्ग से उनको बाहर फेंक दिया गया। and lost the glory of God. उन लोग परमेश्वर की महिमा को खो दिया। Sin entered in their life. उनके जीवन में पाप घुस गया। Then Adam gave this new name to his wife. तब आदम ने उस स्त्री को हव्वा नाम दिया। The original plan of God was to keep this wonderful family in perfect harmony. परमेश्वर का सच्ची में जो उद्देश्य था वो ये था कि ये परिवार को बहुत ही अच्छा एक मिलाव में रखना है। हर But there तरीके came में। disagreement and there came division in their life. लेकिन उनके पारिवारिक जीवन में आपस में जो भिन्नता आया और उन लोग अलग डिविजन्स आया। For the first time in chapter 2, when Adam saw his wife, woman, he said that, oh, this is my now bone of my bones and flesh of my flesh. और हम लोग जब देखते हैं कि जब सबसे पहले आदम ने हव्वा को देखा, इतना प्यार से बोला कि ये तो मेरे हड्डी में की हड्डी है और मांस में का मांस है। But after the fall in chapter 3 and verse 12, this same man Adam said about this wife, the woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and I ate. और लेकिन पाप के बाद आदम ने अपने पत्नी को देखकर ऐसा कहता है कि परमेश्वर तुमने जो स्त्री को मुझे दिया है उसने मुझे ये फल खाने के लिए दिया। Earlier she was so dear to him. और जब पहले हम देखते हैं उसका पत्नी उसके लिए बहुत ही प्यारा था। After the fall, suddenly he is calling the woman. और लेकिन पाप के बाद, पाप में गिरने के बाद तुरंत ही अपने पत्नी को वो स्त्री कर कर बुलाते हैं। Wretched woman. ये बहुत खराब स्त्री। Many families are like that. बहुत से परिवार ऐसे हैं। During the time of engagement or during the initial days of their marriage, उनके शादी के पहले जो पहले दिनों में बहुत, during the time of love affair, और जब आपस में जब उन लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं, so sweet, बहुत ही प्यार से रहते so हैं, wonderful, बहुत ही सुंदर होता है। and the initial days of their marriage, they are loving and they are providing and they are caring one another. और उनके शादी के पहले दिनों में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। After 6 months, और 6 महीने के बाद ही the initial excitement will come down. तो जो पहले में जो खुशी था वो थोड़ा कम होने लगते हैं। Slowly disagreement will enter in their family life. थोड़ा कर एक दूसरे में जो झगड़ा शुरू हो जाता है। One another they will start calling fool, एक दूसरे को अभी वो फूल कर नहीं तो बुद्धू कर बोलेंगे, useless, तुम कोई काम का नहीं है बोलेंगे, many other names. और बहुत ऐसे नाम बुलाएंगे। All respect is gone. सब जो आदर था पहले का वो सब चला जाता है। Love is gone.
पूरा जो प्यार था वो सब गायब हो जाता है Harmony is gone. और जो मेल मिलाप था वो भी चला जाता है। This is because of the fall. ये जो है, ये जो पाप में गिरने का वजह से है। After the fall, जो पाप में गिरने के बाद there started a great difference between man and woman. और ये पाप में गिरने के बाद मनुष्य पुरुष और स्त्री में बहुत भिन्नता आई। And it can be called as dissimilarities. और उसको हम एक तौर से बोल सकते हैं, एक दोनों में मेल मिलाप नहीं है, एक साथ नहीं जा सकते। Similarity, likeness, all are very good for family life. और एक परिवार में दोनों मिलकर रहना, सब कुछ के लिए एक साथ सोचना, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। But there will end up dissimilarities, disagreement, dispute, argument in family life. लेकिन कई परिवारों में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरा भिन्न भिन्न सोचना, ये सब घुस सकते हैं। Quarrel, clash and controversy will enter in family और life. लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को बकना, ये सब एक परिवार में आ सकते हैं। These are the natures of hell. ये सब जो है नरक का स्वभाव है। Harmony is the nature of heaven. जो मेल मिलाप है वो स्वर्ग का स्वभाव है। The above things which I said are the natures of hell. और जो खराब बातें जो मैंने बोला वो सब नरक का स्वभाव है। Many families on this earth are similar to hell. और बहुत से परिवार इस धरती पर आज वो नरक के समान जी रहे हैं। And many husbands, they shared to me that I don't want to go back to my family. I don't want to go back to my home. और बहुत से पति लोग मुझसे आकर ऐसे कहते हैं कि मैं वापस मेरे घर नहीं जाना चाहता। Because of the arguments and differences in the family life, inside the house, there is always argument and quarrel. Many husbands and many wives, they doesn't want to live under that roof. और बहुत से पति पत्नी, क्योंकि हरदम उन लोग में लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, इसलिए उन लोग एक ही घर के नीचे रहना नहीं चाहते। Oh, it's very sad. ये बहुत ही दुख की बात है। You have to overcome from such hellish natures and you have to make your family a heaven on this earth. आपको ऐसा नरक का जो स्वभाव से अपने आप को ऊपर कर स्वर्ग का स्वभाव लाना है अपने परिवारों में। One great man whose name is Winston Churchill, he was the Prime Minister of Great Britain, England. और विंस्टन चर्चिल नामक जो व्यक्ति जो इंग्लैंड के एक प्राइम मिनिस्टर थे, His marriage was considered as one of the best examples in England during those days. और उन दिनों में उनका जो शादी है सबसे अच्छा पारिवारिक जीवन है माना जाता था। Such a great love between Winston Churchill and his wife. और उनके पत्नी और उनके बीच में बहुत प्यार था। Once a newspaper man came and interviewed Winston Churchill. और एक बार ये जो न्यूज लिखने वाले हैं, जो पत्रकार है, आकर इनसे इंटरव्यू लेता है। And he asked, that newspaper man asked one question to Winston Churchill, if you could live again, what would you want to be? और इस प्रकार से उनसे पूछा, अगर आपको फिर से जीने के लिए मौका दिया जाता है तो आप क्या बनना चाहते हैं? If you are getting one more opportunity to live on this earth, what you want to be? Whether you want to be the president of America or you want to be the president of England, what you want to be? अगर आपको और एक जीने के लिए मौका दिया जाता है, आप क्या बनना चाहते हैं? आप इंग्लैंड का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? And his reply is so wonderful. और उन्होंने इस प्रकार से जवाब दिया। He said like this. उन्होंने इस प्रकार से कहा। With a twinkle in his eyes, Mr. Churchill replied, I want to be the husband of my wife or Mrs. Churchill if I get one more opportunity to live on this earth. और इस प्रकार से कहा कि और मुझे एक मौका मिलता है इस दुनिया में जीने के लिए, मैं फिर से मिसेस चर्चिल का हस्बैंड होकर रहना चाहता हूँ। Many people are depressed by hearing this statement itself. अभी बहुत लोग ये सुनकर एकदम घबरा गए हैं। Would you say like that? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? If you get one more opportunity to live on this earth, अगर आपको और एक मौका देता है इस धरती पर जीने के लिए, my dear husbands, would you like to be the husband of your same wife, your wife? और आप पति लोग जो है,
आप क्या बोल सकते हैं कि आपका जो पत्नी है उसी को आप उसके साथ ही रहना चाहेंगे? In Arunachal Pradesh, the situation is very difficult to explain. अरुणाचल में जो सिचुएशन है बहुत ही मुश्किल है उसको एक्सप्लेन करना। If I ask this question to sisters, many of the sisters will say, never again. और मेरे कई बहनों से जब मैं पूछूंगा तो उन लोग बोलेंगे कभी ऐसा नहीं होगा। At the first itself, I told you that many ladies in villages were married by force. और मैंने जो पहले ही हम आपके बीच में बांटा है कि बहुत से जो महिला लोग थे उन लोग फोर्सली मैरिज करने के लिए उनको दिया गया। But what to do now? अभी क्या कर सकते हैं? But I teach you, the young people and the young families, make this as a model in your life. लेकिन मैं जो जवान बच्चे लोग हैं यहाँ पे हैं, जो जवान कपल्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि ये आप मॉडल कर कर बनाइए। Love one another. एक दूसरे को प्रेम कीजिए। Make your family a heaven on this earth. और आप अपने परिवार को इस संसार में एक स्वर्ग जैसा बना दीजिए। I tell you, servants of God, many of you are servants of God, pastors, if your family life is destroyed, your whole life is destroyed. और बहुत से लोग जो प्रभु की सेवकाई करते हैं, मैं आपसे खास तौर से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका पारिवारिक जीवन नाश हो जाता है, आपका पूरा जिंदगी कुछ आप नहीं कर पाओगे। Many pastors are running to save many souls. बहुत से पास्टर लोग बहुत आत्माओं को बचाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। But they are losing their family. लेकिन वो अपने परिवार को खो रहे हैं। They lost their family. वो अपने परिवार को खो दिया। What is the use if you lost your family and saved 1,000 souls? आप अगर 1000 लोगों को बचा लिया लेकिन अपना बीबी बच्चों को खो दिया तो इससे क्या उपयोग है आपका? No time to spend with your wife. आपको समय नहीं है अपने बीबी के साथ थोड़ा समय नहीं बिताने के लिए समय नहीं है। And you know, in many families, husbands and wives, wife is sleeping in that room, the husband is sleeping in another room. और बहुत से परिवारों में आज ऐसा है कि वाइफ एक दूसरे रूम में सोता है, हस्बैंड दूसरा रूम में सोता है। If there is only one room, अगर एक ही रूम है, they will keep one pillow in between husband and wife. तो बीच में एक पिल्लो रख देते हैं। And this is the wall, don't come near to me. तो ये एक वॉल है, तुम मेरे पास नहीं आना है। There is no conversation between husband and wife. और पति पत्नी में कोई बातचीत नहीं होता, No love. कुछ प्यार ही नहीं। Making your own family hell on earth. और आप ऐसे करने से क्या कर रहे हैं? आपका खुद का जीवन, आप पारिवारिक जीवन को आप नरक बना रहे हैं। Come on. Start rebuilding your family life. इसलिए आप आइए, निकल के आइए ये सब से और अपना परिवार को बनाने के लिए शुरू कीजिए। What all things happened till now? अभी तक आपका जीवन में क्या कुछ हुआ? No problem. कोई बात नहीं, Jesus will forgive you. यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे। But now onwards, start rebuilding your family. लेकिन आज से आप कोशिश कीजिए आपका परिवार को बनाने के लिए। See, many husbands, they are not looking at their wives' their face. और बहुत से जो पति लोग हैं वो अपने पत्नी को नहीं देखते, मुंह में नहीं देखते, They're looking all other girls. और बाकी पूरा लड़की लोग को देखते हैं। Stop, my ये dear सब brother. रोक दीजिए, ऐसा रोक दीजिए, ऐसा मत कीजिए। Look at your wife's eyes. लेकिन आप अपने पत्नी का आंखों में देखिए। Maybe your wife may not be so beautiful like a film star. आपका पत्नी शायद एक फिल्म के जो फिल्म स्टार है उसका जितना इतना सुंदर तो नहीं होगा। That's not a problem. वो कोई समस्या नहीं है। But from your heart, when you start loving your wife, जब आपके हृदय से आप जब अपने पत्नी को जब प्यार करने लगेगा, you will feel in your heart that your wife is the most beautiful lady on this earth. तब आपका हृदय में ऐसा लगेगा कि आपका जो पत्नी है वो इस दुनिया में सबसे सुंदर औरत है। The same with ladies also. और यही लड़की औरत लोग को लिए भी यही है। When you start loving your husband from your heart, आप अपने हृदय से अपने पति को जब प्यार करेंगे, then your husband will become the most handsome man on this earth. तब आपका जो पति है इस दुनिया में सबसे सुंदर आदमी आपके लिए बन जाएगा। That means year after year your love for one another will increase. तो क्या होगा?
साल बढ़ते जाने से आपका एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो भी बढ़ता जाएगा। This is our testimony. ये हमारा टेस्टिमनी गवाही है। Our family, last 10 years, we experienced that love is increasing day after day. और हम ये अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, 10 साल हो गए हमारे शादी के, रोज हमारे जो प्यार है एक दूसरे के लिए वो बढ़ रहा है। Before you go to heaven, God has given this wonderful opportunity to develop your love, loving one another. और आप स्वर्ग जाने से पहले प्रभु आपको एक चांस दे रहा है कि आप एक दूसरे को प्यार करें। This is a school on this earth. और ये हमारे लिए एक स्कूल है। परिवार जो है स्वर्ग जाने से पहले एक स्कूल के जैसा है, So that your love will increase. ताकि आप एक दूसरे को प्यार करना सीखेंगे और प्यार में बढ़ना सीखेंगे। I tell you the truth, your family life, even after 30 years also, your love for your wife will increase. और मैं ये सच्ची बात आपको बोलना चाहता हूँ, आपका शादी के बाद 30 साल के बाद भी आप बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को प्यार में बढ़ सकते हैं। But after the fall, when the glory left from man and woman, there came dissimilarities in man and woman. तो हम वचन में देखते हैं कि जब पाप के बाद ये लोग जब पाप किया तो ये पति और पत्नी में भावना में उनके जो मेल मिलाप नहीं था। A scientist examined 12 brains of male and female. तो ये जो एक साइंटिस्ट थे वो 12 ब्रेन को उन्होंने पढ़ा। He noticed that the left side of the brain and the right side of the brain is energetic or active in a lady's brain. और उन्होंने इस प्रकार से जो पढ़न में उनको मालूम हुआ कि जो औरत लोग हैं उनका जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है, राइट साइड का ब्रेन है, वो दोनों काम करता है। And mostly ladies are using both side of their brain. और जो औरत लोग हैं वो दोनों साइड का ब्रेन को यूज करते हैं। And man's brain is 10% bigger than lady's brain. और जो आदमी पुरुष का जो ब्रेन है वो 10% औरत का ब्रेन से बड़ा है। And man is using mostly on the left side of his brain. और आदमी लोग जो है, पुरुष जो है, वो उनका बस लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है उसको ज्यादा यूज करता है। So at present there is so many differences between ladies and men. तो शारीरिक रूप में ही औरत और पुरुष में बहुत सी विभिन्नताएं हैं। The taste of woman is different, the taste of man is different. आप समझ सकते हैं जो औरत लोग का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, अब पुरुष लोग का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। And the emotional realm of woman is different and the emotional realm of man is different. और जो उनकी जो भावनाएं हैं वो भी बहुत अलग होता है। Ladies will cry very fast. और जो औरत लोग है एक क्षण में उन लोग रोना शुरू कर देंगे। But man may not cry so fast. लेकिन पुरुष लोग जल्दी नहीं रोते। You just think about something is happening in your family life. आपका जीवन में something is happening in your family. आप अभी अगर आपके परिवार में जो कुछ बातें जो हो रहा है उसको सोचने से The response of ladies and the response of men differs. तो अभी इसी वक्त जो औरतों का जो उसके लिए जो रिस्पॉन्स करते हैं उसको कैसा देखते हैं वो अलग होगा, पुरुष लोग उसको अलग रीति से लेंगे। For example, one person died in your family. एक घर सोच लीजिए आपका घर में कोई मर गया है, One relative died in your family. आपका कोई रिलेटिव मर गया है, So how wife will respond? तो पत्नी लोग कैसा उसको रेस्पॉन्ड करेंगे? All on a sudden she will beat her chest and she will start crying. तो औरत लोग क्या करेंगे? एकदम रोना शुरू हो जाएगा And she will say, such a good man. और ऐसे बोलेंगे कि ओ इतना अच्छा आदमी था, In those days he did such and such good things to me. और उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया। But how the husband will respond? लेकिन जो हस्बैंड है, जो पति लोग है, उसको क्या बोलेंगे? In that circumstances, ऐसे जब बातें होती है he will take the telephone, वो फोन उठाएगा he will call the people, और वो सब जितने लोगों को बोलना है उनको बोलने he लगेंगे, will arrange for the funeral. और जो जो काम करना है फ्यूनरल के लिए वो सब करेंगे। See, that is the two types of response. The wife is crying, but the husband is doing something very actively, which is very practical.
और हम देख सकते हैं ये एक ही बात जो दोनों फेस करते हैं। तो औरत वही समय पे बैठ के रो रहा है, लेकिन पति क्या कर रहा है, वो फोन कर रहा है, उसके लिए इंतजाम कर रहा है, सब कुछ वो काम कर रहा है। There is difference between man and woman. तो हम देख सकते हैं एक पुरुष और स्त्री में बहुत ही डिफरेंसेस है। But even these differences and dissimilarities can be used for harmonious family life. तो हालांकि हमारे जीवन में इतना विभिन्नताएं हैं, लेकिन इस विभिन्नता को भी हम एक मेल मिलाव में हम उसको यूज कर सकते हैं। Hallelujah! 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 The sound of keyboard and the sound of drum is different. ये जो कीबोर्ड का जो आवाज है और ड्रम का जो आवाज है बहुत अलग है। But when the music comes, लेकिन जब म्यूजिक बाहर आते हैं, even this differences becomes harmonious music. इतना विभिन्न आवाज होने से भी जब बाहर आता है एकदम सुंदर आवाज कर कर निकलता है। Likewise, the differences between you can be made for a perfect harmonious family life. और इसी प्रकार हमारे जीवन में जो विभिन्नता है उसको बहुत ही मेल मिलाप के लिए बना सकता है। जो मनुष्य और स्त्री का जो ज्ञान है, विजडम है, If you develop that wisdom in your life, अगर आप वो विजडम को अपने जीवन में यूज करते हैं, you can be a blessed family, model family on this earth. तब आपके जो परिवार जो है बहुत एक आशीषमय परिवार इस धरती में बन सकते हैं। We are in a process towards Christ likeness. और हम जो यीशु मसीह के जैसे होने के जो प्रोसेस में है, As we are in Christ, हम जब यीशु मसीह में हैं, changes and transformations are taking place in our life. हमारे जीवन में रोज बहुत से चेंजेस, बहुत सी परिवर्तन हमारे जीवन में होता है। Finally, it is written in Mark chapter 12 and 25. और मरकुस उसका चैप्टर 12 वर्स 25 में ऐसा लिखा है, We will become like angels. और ऐसा लिखा है कि हम एक दिन स्वर्गदूत के जैसा हो जाएंगे। Chapter 12 and verse 25. मरकुस उसका चैप्टर 12 वर्स 25। It is written, For when they rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. क्योंकि जब वो मेरे हो गए हैं तो वह ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिया जाएगा, परंतु स्वर्ग में दूत के समान होंगे। Here we have males and females. इसलिए हम यहाँ पे पुरुष और स्त्री को रखा गया But है, ultimately, लेकिन एकदम लास्ट में we will be all like angels. लास्ट में हम लोग सब स्वर्गदूत जैसा बन जाएंगे। The differences will go forever. और हम औरत और पुरुष में जो डिफरेंस है, जो भिन्नताएं है, वो सब दूर हो जाएगा। We will become similar. हम एक जैसा हो जाएंगे, Likeness of Jesus और Christ. यीशु मसीह के जैसा हम हो जाएंगे। All will become like Jesus और Christ. सब लोग यीशु मसीह का जैसा हो जाएंगे। That process is starting from this earth onwards. और वो जो काम जो करता है वो ये धरती से शुरू हो जाता है। Why these disagreements coming in our family life? हमारे पारिवारिक जीवन में क्यों वाद विवाद होता है? So that we should rectify our carnal nature and receive the nature of Jesus Christ. ताकि हमारे जो शारीरिक अभिलाषा या पाप का जो स्वभाव है उसको सुधार कर यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए We will imitate the heavenly nature on this earth itself and we will become like Jesus Christ. और जब हम धरती पर रहते हैं, हम यीशु के स्वभाव के लिए अपने आप को जब देते हैं, हमें उस स्वर्गीय स्वभाव में ले जा रहे हैं। In our life, when we started our family life, there came some disagreements. और जब हमारे पारिवारिक जीवन में जब हम शुरू में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हमारे बीच में थे, Everything was
not perfect. और सब कुछ एकदम अच्छा या भला नहीं था। We all are imperfect people. हम सब में कमी घटी होती है, But one good thing between us that we never quarreled. लेकिन हमारे बीच में हम ये बोल सकते हैं कि हमारे बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। 10 years we never quarreled. और 10 साल हो गए, कभी ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। No shouting between each other. और एक दूसरे को कभी जोर से कुछ ऐसा बोलना, गाली देना कभी नहीं हुआ। I don't know why that happened. ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम। There was no argument. और हम में ज्यादा वाद विवाद भी नहीं होते थे, There was no anger also. और एक दूसरे को गुस्सा भी नहीं करते थे। And basically both of our nature is that we don't get angry. और हम दोनों को ऐसा एक स्वभाव है कि हम जल्दी गुस्सा नहीं होते। Anger is one of the major problem in many family lives. और जो गुस्सा है वो स्वभाव बहुत पारिवारिक जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। Many husbands, they are facing this problem in their life. That is one of the major reason there is no peace in your family life. और आपका पारिवारिक जीवन में सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण कि आपको शांति नहीं, ये है आपका जो गुस्सा। Pray to the Lord and God will give you the grace to overcome every angry nature. तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आपका जो हर एक गुस्सा होने का जो स्वभाव है उससे प्रभु आपको छुटकारा देगा। Amen. Praise the Lord. But some other differences will took place in our life. लेकिन कुछ और रीति में जो विभिन्नताएं हमारे जीवन में आई, For example, जैसे कि I will sit in my room मेरे रूम में मैं बैठता हूँ and she will be working in kitchen. और वो किचन में काम कर रही होगी, So I'll call Shiba. तो मैं ऐसे बुलाऊंगा शिबा करके, She will not hear. तो वो नहीं सुनेगी। She will be working in the kitchen. तो वो तो किचन में काम कर रही है, So I will think that she is just avoiding me. तो मैं ऐसा सोचता है कि वो मुझे वो सुनने को दिल नहीं है इसलिए ऐसे कर रहा है। Again I will loudly call Shiba. तो और जोर से मैं बुलाऊंगा शिबा करके, No response. तो फिर कुछ उधर से कुछ उत्तर नहीं आता है। So I will go and I will tell her, I called you 3 times. You are not hearing me. तो मैं किचन में जाकर उनसे कहता हूँ कि मैंने आपको 3 बार बुलाया और तीनों बार आपने नहीं सुना। And she said that because I was not hearing you. तो बोला कि मुझे सुना ही नहीं दिया। Okay. तो मैंने बोला ठीक है। Next time also some other occasion I will call Shiva. तो दूसरे बार क्या होता है, फिर से ऐसे शिबा करके बुलाते हैं, No response. तो कोई जवाब भी नहीं मिलता। What happened? तो मैंने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है। And the Lord spoke to me. तो प्रभु ने मुझसे ऐसा बोला, See, if she is not hearing you, if she is not hearing you, तो तुम जो बुला रहे वो नहीं सुन रही है, तो you stop this Allah. Shiba, Shiba, stop it. तो तुम ये हल्ला करना छोड़ दो, शिबा शिबा क्यों बुला रहे हो। Just get up from your chair, walk to the kitchen and meet her and tell your need there. तो तुम अपने चेयर से उठकर किचन में जाकर तुम्हें क्या चाहिए उसको बोलो। Finish. हो गया बात। So many times we will think that my wife need change in her life. तो बहुत बात हम लोग ऐसे सोचेंगे कि मेरा पत्नी को बहुत चेंजेस की जरूरत है, Wives may think that my husband needs change. और पत्नी लोग सोचेगा मेरा पति ठीक नहीं है, उसको ठीक होना है। 3 times I called her, she is not hearing me. मैंने उसको 3 बार बुलाया, तीनों बार वो नहीं सुना। She needs a change in her life. उसका जीवन में उसको कुछ परिवर्तन का जरूरत है। I tell you, my brothers and sisters, it is not her change. You need a change. लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उसका चेंज नहीं, लेकिन आपको चेंज होना है। Amen. Come out of all such useless disagreements and make your family a harmonious family. आप ये सब जो कोई काम का नहीं वाला जो डिसएग्रीमेंट्स है, वाद विवाद है, सब से निकल कर आइए और अपना परिवार को बहुत ही मेल मिलाप का एक परिवार बनाइए। In many families, because of one small thing, there will come a disagreement and that may go even 2-3 days. They may not talk each other. एक छोटा सा एक बात को लेकर घर में इतना हंगामा हो जाएगा, पति पत्नी 3 दिन तक आपस में बात नहीं करेंगे। I heard a story that because of an onion there came a disagreement between husband and wife. और मैंने ऐसा एक कहानी सुना है, पति पत्नी में एक छोटा सा जो प्याज है उसको लेकर आपस में झगड़ा हो गया। Husband asked, why this onion is so small?
तो जो पति है पत्नी से पूछा ये प्याज क्यों छोटा है? And the wife became angry and it is because of you. तो पत्नी गुस्सा से बोला ये तुम्हारा कारण ऐसा छोटा हो गया। There was a disagreement between husband and wife और पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ because of one onion. एक छोटा सा प्याज को लेकर इतना झगड़ा हो गया। 3 days there was no conversation between husband and wife. और 3 दिन तक ये आपस में बात नहीं कर रहे थे। Many families are like that. बहुत से परिवार में ऐसा होता I है। told you one example earlier. मैंने पहले आपको एक उदाहरण दिया। In some families there will come some disagreement and because of that disagreement there will not be a conversation for 2-3 days. और कई परिवारों में कुछ छोटे से बात में उनमें लड़ाई हो जाती है और 3-4 दिन तक वो आपस में बात नहीं करते। In one family then for these 3 days they will write down everything. I need a tea, keeping that paper on the table. और ये दिनों में क्या होता है, पति पत्नी को बात नहीं करता है लेकिन पेपर में लिख के रखता है मुझे चाय चाहिए, तो चाय लाके उधर रख देता है। And the wife will make a tea and keep it on the table and write it down. Tea is ready, come and drink. तो टेबल में टी बनाकर रखकर पेपर में लिखता है कि चाय तैयार है, आप आके पी लीजिए। So this man one day he want to go to Guwahati, for example. और आप उदाहरण के लिए ये आदमी को एक दिन सुबह ही गुवाहाटी जाना है। And he wrote down tomorrow early morning 4 o'clock please call me, I want to go to Guwahati. तो Paper kept. पेपर में ऐसा लिख के रखा कि कल 4 बजे सुबह मुझे बुलाना, मुझे गुवाहाटी जाना है। And he slept. और वो तो सो गया। And 8 o'clock he got up. और 8 बजे वो उठ गया। What happened? My wife, she doesn't call me. तो उन्होंने बोला कि अरे क्या हो गया, मेरा पत्नी हमको नहीं बुलाया। And suddenly he saw a paper on the table. Wake up, time is 4 o'clock. तो उन्होंने देखा एक टेबल में पेपर में लिख के रखा है जल्दी उठो 4 बज गया है। Such things are happening in many families. और ऐसे भी बातें बहुत परिवारों में हो रहा है। These are because of small disagreements. ये सब छोटा छोटा बात से होता है। For example, in our church, हमारे चर्च में our ladies will become so full of the Holy Spirit. और हमारे गिरजा में बहुत लोग एकदम पवित्र आत्मा में भर जाएंगे। And maybe the husbands may clap their hands like this. तो लेकिन बहुत से पति लोग अभी धीरे धीरे हाथ बजा रहे होंगे। And then going back to their homes and these ladies they lost the respect for their husbands. तो ये पत्नी लोग को क्या हो गया, अपना पति का जो आदर थोड़ा भूल गया। Because husbands are not worshipping like these ladies. क्योंकि उन लोग जैसे स्त्री लोग जैसे आराधना कर रहे हैं ऐसा उनका पति आराधना नहीं कर रहे हैं। So they consider that I am spiritual and my husband is not spiritual. तो ऐसा उनका मन में विचार आ जाता है कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ, आत्मिक हूँ, मेरा पति इतना आत्मिक नहीं है। That will destroy your family life. वो आपका पारिवारिक जीवन को नाश कर सकता है। You will tell, look that man, he is so spiritual. Why you are not so spiritual? तो आपका पति को बोलेंगे आप देखो वो आदमी कितना अच्छा आराधना करता है, तुम तो आराधना नहीं करते। No sir, never compare your husband, your wife with another person. कभी ऐसा नहीं होना है, आपका पति को आपका पत्नी को दूसरे व्यक्ति को देखकर कंपेयर नहीं करना है। Never compare. अपने पति पत्नी को कंपेयर नहीं करना है दूसरे Praise व्यक्ति the से। Lord. Only once I compared my wife with another lady. तो एक ही बार मेरे जो पत्नी को मैंने दूसरे एक औरत से कंपेयर किया। That is the first year of our marriage. और वो मेरे जो शादी का जो पहले साल में था। We went to the church. हम चर्च में गए। Her voice was that time very weak. That means very pale voice. और Small. उनका जो आवाज है बहुत ही कम था, बहुत आवाज कम निकलता था। And in Kerala, some ladies they will when they will pray, their sound will like coming like lion sound. और केरला में जो बहुत से ऐसे लोग हैं जब वो लोग प्रार्थना करते एकदम लायन का जैसा आवाज आता है। And I came back to home. और मैं घर में आकर I told Shiva, look that sister was praying such big voice. Why your voice is very small? तो मैंने शिवा से आकर कहा, शिवा देखो वो औरत कितना जोर से इतना जोर से प्रार्थना कर रहा था, तुम इतना धीमा क्यों प्रार्थना करते हो? That day Jesus rebuked me. उसी दिन प्रभु ने मुझे रिब्यूक किया। Never again compare your wife with another lady. कभी भी तुम अपने पत्नी को दूसरे स्त्री से कंपेयर नहीं करना है। Because each person is unique
creation of God. क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है परमेश्वर का बहुत ही वो अलग से बनाया गया है Everybody do have their own qualities. और सबके अंदर अपना अपना गुण है। No person is similar to another person. कोई भी एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का जैसा नहीं है। Look here, some 300 people are sitting here. यहाँ पे कुछ 300 लोग बैठे होंगे। Can you show me one person similar to you? आप इसमें कितने लोगों से आपका जैसा एक व्यक्ति को इधर से दिखा सकते हैं? That is the creation of God. वो परमेश्वर का सृष्टि है। That is the marvelous creation of वो God. परमेश्वर का महान सृष्टि का। That chest में you keep your hand on your chest and say, I am unique, creation of God. और अपने हाथों को अपने छाती में लगा कर बोलिए कि मैं बहुत ही अलग से प्रभु ने मुझे बनाया है। So you can come back to this harmonious atmosphere through transformation in your life, and you should become like Christ, Jesus Christ. और That is Christ, through Christ likeness you can return to this harmonious heavenly experience on this earth. आप ये सुंदर मिलाव में कैसे आ सकते हैं? जब आपका जीवन में जब परिवर्तन आएगा तब आप इतना सुंदर जो मिलाव में आप आ सकते हैं Through Christ likeness. यीशु मसीह के जैसे होने से। Then you can be in paradise on this earth. तब आप इस धरती पर स्वर्ग या पैराडाइज बना सकते हैं अपने परिवार को। Your family will become a paradise on this earth. आपका जो परिवार है उस धरती पर स्वर्ग बनेगा। Heaven on this earth. इस धरती पर आपका परिवार एक स्वर्ग हो जाएगा। How many of you want to be a person who is living in a heaven? आप में से Means कितने how many of you लोग want to make your family a heaven on earth? आपका परिवार कितने लोग आप एक स्वर्ग जैसा बनाना चाहते हैं? When that heavenly atmosphere comes in your family life, there comes oneness between husband and wife. जब वो स्वर्गीय जो हमारे परिवार में स्वर्गीय जो मेल मिलाप आता है तब पति पत्नी एक हो जाते हैं। That is the second definition. The first definition is family is the heaven on this earth. Second definition, family is one body. जो सबसे पहला जो डेफिनेशन पढ़ा हमने पढ़ा कि जो परिवार है वो इस धरती में स्वर्ग है। दूसरा जो हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जो परिवार है वो एक है, दोनों एक हो जाता है, पत्नी और पत्नी, पति और पत्नी एक हो जाता है। We are one, husband and wife are one on this earth. और पति और पत्नी इस धरती पर रहते हैं, वो एक हो जाता है। Turn to Ephesians chapter 5 and verse 22 to 32. हम लोग अभी बाइबल देखेंगे एफिसियों उसका 5वां अध्याय उसका वर्सेस 22 से लेकर 32 तक। Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.
And verse 31, look to thus, verse 31, it is written, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. और जब हम वर्स 31 में लिखे हैं कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिल रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे. One flesh. In our social living there are relationships. हमारे जो समाज में बहुत सारे बंधन हैं. There is family relationship. एक परिवार के रूप में जो बंधन होते हैं. Husband and wife relationship. पति पत्नी का जो संबंध है. Parents and children relationship. और माता पिता बच्चों के बीच में जो संबंध है. Pastor and believers relationship. पास्टर और बिलीवर्स उनके बीच में जो संबंध है. Government and people relationship. और गवर्नमेंट और जो लोग हैं उनके बीच में संबंध है. There are so many such relationships. ऐसे बहुत सारे संबंध हमारे बीच में But है. what is the best and strongest relationship in this society? लेकिन हमारे सोसाइटी में सबसे मौजूद एकदम मजबूत कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है? Strongest relationship. कभी नहीं तोड़ने वाला रिलेशनशिप. Husband and wife. वो हस्बैंड और वह पति और पत्नी का जो रिलेशनशिप है वही है. In your teacher and student relationship, whether you can become one body. आपका जो टीचर है और आप स्टूडेंट है, आपका जो रिलेशनशिप में क्या आप एक हो सकते हैं, एक तन हो सकते हैं? No. नहीं. After class 8 you left that class and you were coming to class 9 and other teachers will come and they will teach you. अभी आप क्लास 8 हो गए, आप क्लास 9 में आ गए, आपका क्लास 8 का टीचर को आपको छोड़ना पड़ेगा. The strongest relationship which is available on this world is husband and wife relationship. और ये धरती में सबसे जो मजबूत जो बंधन है वो एक पति पत्नी का बंधन है. And the possibility, it is written there, you can become one flesh. और इतना तक हम जा सकते हैं कि हम पति पत्नी दोनों एक तन हो सकते हैं. What is the meaning of one flesh? एक तन होना, नहीं तो एक शरीर होना, इसका अर्थ क्या है? Here we are not one flesh. यहाँ पे हम दोनों एक शरीर नहीं है. Now also we have our own flesh. अभी भी हमें दो शरीर है. But one flesh means in the sense there will come up or there will come a oneness in that family life. एक तन होने का अर्थ है कि हम दोनों में एक बहुत ही एकता जो बाहर हमारे अंदर से आता है. There will come up one sense, one language in our family life. तो हमारे जो पारिवारिक जीवन में एक ही भाषा हमारे जीवन से बहने लगता है. That doesn't mean that your mother tongue. वो आपका जो मातृभाषा है उसका अर्थ नहीं When है. I look itself, she will understand my mind. तो मैं मेरे पत्नी को देखने से ही मुझे उसका हृदय में क्या है वो समझ में आ जाता है. When I talk something, she will understand the core of the message. और जब मैं मेरे पति जब पत्नी से बात करते हैं उसको पूरा समझ में आ जाता है पति का दिल में क्या है. Even the language became one. और जो हमारा जो भाषा है एक दूसरे से बोलने का वो भी एक हो जाते हैं. Whether these things are possible, क्या ऐसा हमारे जीवन में हो सकता है? whether I am telling about some utopian principles which is not practical on this earth, क्या मैं ऐसे कुछ बात आपके सामने बोलता हूँ जो कभी हमारे जीवन में नहीं हो सकता? some impossible things I am telling to you. आप कभी नहीं होने वाला कुछ बातों को क्या मैं आपको सिखा रहा हूँ? My dear people of God, don't misunderstand me. This is possible on this earth through the power of Jesus Christ. मेरे भाई बहनों, आप कभी इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है. ये जरूर आपके पारिवारिक जीवन में यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा ये कर सकता है. These are going to happen in your family life. God is going to give this oneness and one language in your family life. और यीशु मसीह आपके जीवन में एकता देगा, एक ही लैंग्वेज एक दूसरे को समझने का वो शक्ति देगा. Becoming one flesh. एक तन होना. The meaning is that live for common benefit. तो उसका अर्थ क्या है? हम एक दूसरे के भलाई के लिए जीने लगते हैं. English में those who can speak English, please tell me common benefit.
common benefit. Live for common benefit. Live for common benefit. I'll give an example. मैं आपको उसके लिए एक उदाहरण दूंगा. This is a body. ये एक शरीर है, But this body is consists of many organs. लेकिन ये शरीर में बहुत से अंग है. Show me your hands. आप सब अपने हाथों को दिखाइए. Beautiful hands. बहुत सुंदर हाथ हैं. Whether this hand is the whole finny? क्या ये हाथ पूरा फिन्नी है? This is only a part of my body. ये बस मेरा शरीर का एक अंग है. Whether my eyes is the whole finny? क्या मेरा आँख पूरा फिन्नी है? No, part of my body. बस आँख मेरा शरीर का एक अंग है. So from head to toe, the whole organs together makes a person. तो पूरा सिर से नीचे लेकर नीचे तक पैर तक एक एक जो अंग है वो मिलकर एक व्यक्ति को बनाता है. You know, in our body there are 260 bonds. क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में 260 हड्डी है. Doctor is sitting here. यहाँ पे हमारे बीच में डॉक्टर साहब है. In our body there are 600 muscles, more than 600 muscles. हमारे शरीर में 600 से भी ज्यादा मसल है. Oh, wonderful. And in the whole body, the nervous system, the whole 970 miles of nervous system are there in our body. और क्या आप जानते हैं हमारा जो नस है वो 970 miles. So that means if we take one person's nerves and if you put it from here, it can be taken up to Calcutta. तो आपका जो अगर आपका जो Water supply, we can start water supplying from with your nerves. We can supply water from Naharlagun to Calcutta. तो आपका जो नर्व को अगर आप लेंगे यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से कलकत्ता तक पहुँचने वाला नर्व आपका शरीर में अभी है. You want to see a miracle? क्या आप एक आश्चर्य को देखना चाहते हैं? Look at you. आप अपने आप को देखो. Or look at the other person. आपका पास में वाला पड़ोसी को देखो. पड़ोसी को देखो. आप एक दूसरे को देखिए. आपका पास बैठने वाला. Sitting a miracle next to you. आपका पास जो बैठा है वो परमेश्वर का बहुत आश्चर्य काम है. And you have a heart. Everybody show like this. आप सब ऐसा दिखाइए. Your heart is this much bigger. आपका जो हार्ट है, दिल है, कितना है आप ये देखने से हो जाएगा. Yes. इतना आपका हार्ट. This heart is always beating. Always this heart is beating. ये जो हार्ट है, हमारा जो दिल है वो हरदम ऐसा बीट करते रहता है. Almost 4,200 times in an hour. 4,200 times. एक घंटा में इतना बार ये ऐसा पंप करता है. This heart is a motor. ये जो हार्ट है, हमारा जो मोटर है कुआं से पानी उठाने का, ऐसा मोटर है. In a day 12 tons of blood is pumped by this heart. और ये हार्ट से एक दिन में 12 टन ब्लड को ये पंप करता है. If so, if you have 50 years old, last 50 years non-stop pumping is going on inside you. तो आप सोचिए, आपका भी अगर आप 50 साल के हो गए, अभी तक आपका जो अंदर का जो हार्ट है, मोटर है, वो पंप करते रह रहा है, कभी भी नहीं रुकता. Lift up your hands. A miracle happened. ये बहुत बड़ा एक आश्चर्य है. You know, when you lifted up your hands, आप जब अपने हाथों को उठाया, this part cooperated. ये जो जगह है ये कोऑपरेट किया. This part cooperated. और ये घुटना है वो कोऑपरेट किया. This fingers cooperated. और ये जो हमारे उंगली है वो कोऑपरेट किया. Brain cooperated. हमारा जो दिमाग है उस कोऑपरेट किया. Muscles cooperated. हमारे मसल्स कोऑपरेट किया. A miracle took place. और बहुत बड़ा एक मिरेकल हो रहा है. How this body functions. ये हमारा जो शरीर है कैसा काम करता है. Whether you have to ask the hand, lift up. क्या आपका हाथ को ऐसा गाली देना पड़ता है, हाथ ऊपर उठो. Whether you have to come with a stick and beat the hand to be lifted up. क्या आपको एक डंडी लेकर ये हाथ का पास आके बोलना है तुम हाथ उठाओ. No. ऐसा कभी नहीं बोलना पड़ता. The functioning of
The body can be called as an organism or it is organic. हमारे जो शरीर में जो काम होता है उसको एक प्रकार हम बोल सकते हैं स्वाभाविक है वो। स्वाभाविक, बोलिए स्वाभाविक। स्वाभाविक, स्वाभाविक। स्वाभाविक। You are hearing the word of God. आप अभी इधर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। But one thing स्वाभाविक happens in your life. तो एक स्वाभाविक रूप में कुछ हो रहा है आपके अंदर। You are breathing. आप यहाँ सांस ले रहे हैं। You breathe. आप सब सांस लीजिए। Whether you have to ask the nose to breathe. क्या आपका नाक को बोलना है, अरे नाक तुम सांस लेते रहो? Is it? ऐसा बोलना है? No. ऐसा नहीं बोलना। स्वाभाविक। ये स्वाभाविक है। And when this happens स्वाभाविक, ये जब स्वाभाविक में ऐसा होता है, who is benefited? इससे किसको लाभ मिलता है? The whole body is benefited. तो उससे पूरा शरीर को उसका भलाई मिलता है। I will give you an example. मैं उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। Here is an apple. यहाँ पे एक एप्पल है। One apple is here. यहाँ पे एक एप्पल रखा गया है। With which organ you will see the apple? Tell me. आप अपने शरीर के किस अंग से वो एप्पल को देखेंगे? Who saw the apple? किसने देखा एप्पल को? Eyes. All on a sudden, what will happen in your mouth? तो एप्पल देखते ही आपका मुंह में क्या आएगा? पानी आएगा। इसलिए माउथ का अंदर टेस्ट आएगा। तो हमारा जो मुंह में टेस्ट आ जाएगा। So when the taste comes, who will go to pick the apple? तो वो एप्पल लेने के लिए कौन जाएगा? And this hand will pick up, the fingers will pick up the apple. और ये जो उंगली है वो एप्पल को पकड़कर ऐसे लाएगा। Where it will go? वो कहाँ जाएगा? In the mouth, who will chew the apple? और ये मुंह के अंदर आकर उसको कौन चबाएगा? Then what will happen? उसके बाद क्या होगा? उसको अंदर दे देंगे। Inside your stomach, what will happen? और आपका जो पेट में जाने के बाद क्या होगा? Digestion. और वहां पे ये पचने लगेंगे। Contraction and expansion. और ऐसा उसका जो पेट में उसको पचने लगेंगे। There the energy is produced. तो वहां से हमारा शरीर को जो शक्ति चाहिए वो निकलेगा। Within 10-15 minutes, an apple becomes energy. तो एक 10-15 मिनट में ही एक एप्पल जो है आपको शक्ति देने लगेगा। So eyes and hands are quarreling each other. तो ये जो आंख है और हाथ है, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। I saw, so I want the energy. तो आंख बोल रहा है कि क्योंकि मैंने एप्पल को देखा है इसलिए मुझे वो शक्ति चाहिए। Hands is quarreling with the eyes. No, I picked up the apple, so I want the energy. तो ये जो हाथ है वो लड़ाई कर रहा है, बोल रहा है नहीं मैंने ये एप्पल को लिया है उसने मुझे ये शक्ति चाहिए। Suddenly the teeth said, no, 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 I chewed, so I want the energy. तो ये दांत जल्दी लड़ाई करता है, बोलते है नहीं मैंने इसको चबाया इसलिए मुझे शक्ति चाहिए। Whether such quarrel takes place in your body? क्या आपका शरीर में ऐसा झगड़ा होता है? No. One apple turned into energy. The whole body benefited from that energy. एक एप्पल के द्वारा आपका शरीर में शक्ति मिलता है, वो पूरे शरीर को वो लाभ देता है। Likewise, a family has to function. और इसी प्रकार एक परिवार को काम करना है। Body, how a body functions, likewise a family has to function. किस प्रकार एक शरीर काम करता है उसी प्रकार एक परिवार को भी करना है। Each one doing their responsibilities. हर लोग अपना अपना जो कर्तव्य है उसको करना है। For the common benefit. सबके भलाई के लिए। She is cooking in the kitchen. मेरे बीबी किचन में खाना पका रही है। I am praying in the room. मैं रूम में प्रार्थना करता हूँ। I will travel to other places and preach in different parts of this land. और मैं दूसरे जगहों में जाकर प्रचार करूँगा। She will taking care of the children. और वो मेरे बच्चों का ख्याल करती है। She is teaching the children. वो बच्चों को पढ़ाती है। When I am coming back from preaching, whether we are quarreling each other, तो जब मैं प्रीचिंग कर वापस घर में आता हूँ क्या हम झगड़ा करते हैं? whether she is saying that I worked all the day in the kitchen. मैं पूरा दिन किचन में काम किया।
I taught the children. मैंने बच्चों को पढ़ाया You are not concerned about me. You are not caring my life. और तुम मेरे जीवन के बारे में कुछ चिंता नहीं करते, तुम मेरा कुछ देखभाल नहीं करते। Whether I was telling to my wife, I traveled so much and preached so many hours. और क्या मैं मेरे पत्नी से कहता हूँ मैं इतना घंटों घंटों प्रीच किया, इतना दूर दूर जगह मैंने ट्रैवल किया? No. ऐसा कभी नहीं बोलते। Each one is fulfilling their responsibilities. हर एक व्यक्ति उनको जो किया हुआ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको जो दिया काम है, उसको करता है For the common benefit. सबकी भलाई के लिए। By preaching, who is blessed? और प्रचार करने से किसको आशीष मिलता है? The whole family. हमारे पूरे परिवार को आशीष मिलता है। By preparing the food, who is benefited? और खाना पकाने से किसको भलाई मिलती है? Common benefit, the whole family. तो पूरे परिवार को उसका भलाई मिलती है। By teaching the children, who is benefited? और बच्चों को पढ़ाने से किसको भलाई मिलती है? The whole family, common benefit. पूरा परिवार को उसका भलाई मिलती है। Do you understand what I mean? क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ? Do you understand what I mean? क्या आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है? Can you come to that level of one flesh relationship? क्या आप वो एक तन होने का जो रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं? Not boasting in what I did for my family. ऐसा कभी ताव नहीं मारना है कि मैंने मेरे परिवार के लिए ऐसा ऐसा किया है। And one family, they said, one sister told me one thing. और एक बहन ने मुझसे ऐसा कहा, And my husband do everything for me. मेरा जो पति है मेरे लिए सब कुछ करता है, But he will boast about what he did for my family. लेकिन कभी कभी वो एकदम घमंड मारने लगता है, मैंने मेरे परिवार के लिए ये सब किया है। Bought a churidar, एक चूड़ीदार को खरीदा, but publicly he will say that you are wearing this beautiful churidar. Why? Because of my money. तो सबका सामने पति बोलेगा, हाँ ये बहुत सुंदर चूड़ीदार तुम पहने हो, लेकिन क्यों? मेरा पैसा से इसको खरीदा है। Never tell like that. ऐसा कभी नहीं बोलना है। Why? क्यों? Who is wearing that churidar? ये चूड़ीदार कौन पहन रहा है? Your flesh. आपका शरीर पहन रहा है। One body. आप एक तन है। Some wives, they will hard work in the kitchen और कुछ पत्नी लोग जो किचन में बहुत काम करेंगे and provide the food on the table. और खाना लाकर टेबल में रख देंगे। Eat well. All through the day I am hard working in the kitchen and you are just eating and eating and eating. तो बीबी आकर बोलेंगे, देखो मैं पूरा दिन किचन में बगान में काम किया, तुम तो सोते रहते हो, खाओ खाओ खाओ। My dear sisters, who is eating? मेरे बहनों कौन खा रहा है? Your flesh. आपका शरीर खा रहा है। One flesh. आप एक तन है। If you are doing some good things to your husband or wife, आप अपने पति या पत्नी के लिए कुछ भलाई करते हैं, you are doing good to yourself. आप अपने लिए ही वो भलाई कर रहे हैं। Just now everybody turn to Ephesians. और सब अभी लेंगे एफिशियो। Now you can see the meaning of that verses. और वो जो वर्स एफिशियंस में दिया है उसका मीनिंग हम देखेंगे। Verse 28. उसका जो वर्स 28 है, So husbands ought to love their own wives as their own bodies. इसी प्रकार उचित है कि पति अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। Beautiful. He who loves his wife loves himself. जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। For no one ever hated his own flesh, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर को बैर नहीं रखा, but nourishes and cherishes it. वरन उसका पालन पोषण करता है। That is very beautiful. Everybody say in English, nourishes and cherishes. cherishes, Nourishes nourishes, and cherishes. cherishes, हिंदी में क्या लिखा है? पालन पोषण करना। पालन पोषण, बोलिए पालन पालन पोषण, पोषण, पालन पालन पोषण. पोषण, Nourishes nourishes, and cherishes. cherishes। If you receive this revelation in your life, आपको अगर ये वचन का जो गहराई आपको समझ में आ गया, you will never beat your wife. आप कभी अपने पत्नी को नहीं मारेंगे। How many of you have the habit of beating your wife?
आप में से कितने लोग अपने पत्नी को मारते हैं? How many wives do you have the habit of beating the husbands? और कितने पत्नी लोग हैं जो अपने पति को मारने का आदत है? Both sides we have to ask, how many wives beats their husbands? आप में से कितने पत्नी लोग हैं जो अपने पति को अभी तक मारे हैं? Don't lift up your hands. आप हाथ मत उठाइए। If you are beating your husband, आप अगर अपने पति को मारते हैं, if you are beating your wife, आप अपने पत्नी को मारते हैं, whom you are beating? आप किसको मार रहे हैं? You are beating yourself. आप अपने आप को मारते हैं। After 6 months of beating, 6 महीना का मारने के बाद the wife started cough. तो पत्नी एकदम खांसने लगती है। TB हो गया। The husband is taking her to the hospital. और हस्बैंड उसको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाना है। Taking to the healing crusade. और हीलिंग क्रूसाइड प्रार्थना में लेके जाता है। Pastor, please pray for my wife. पास्टर जी मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। TB हो गया। You understood my point? क्या आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Finally, because of this TB, who is taking the pain and suffering? और ये टीबी होने के कारण, ये बीमारी होने के कारण किसको दुख तकलीफ उठाना पड़ रहा है? It is true that the wife is coughing and she is suffering in her body. ये सच्ची बात है कि वो पत्नी अपने शरीर में वो बीमारी को वो सह रही है। Almost similar suffering the husband is also taking right now. उसी समय वो पति को भी इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। Going to Guwahati लेके जाओ, going to वेल्लूर लेके जाओ। But on the other hand, लेकिन उसी समय if you nourish and if you cherish your wife and your husband, आप अपने पति पत्नी को अच्छा से पालन पोषण करेंगे, one body, एक शरीर हो जाएंगे, there will be health and healing in your family life. आपका जीवन में, आपका परिवार में पूरा चंगाई, पूरा अच्छा हीलिंग आपके परिवार में होगा। Hallelujah. Praise the Lord. Take care of your husbands. आप अपने पति का अच्छा से ख्याल कीजिए। Make good food for your husband. अच्छा खाना बनाकर पति लोग को खिलाइए। Take care of your wife. आपका पत्नी लोग को भी अच्छे से ख्याल कीजिए। Take care of your health. उसका जो शारीरिक स्थिति है उसका आप अच्छा से ध्यान दीजिए। See, if you love each other itself, there will not come any sickness in your life. आप एक दूसरे को प्यार करने से ही आपका बीच में कोई बीमारी नहीं आएगी। Even if there comes sickness, अगर आपके बीच में कोई बीमारी आ भी जाता है, you know the best medicine? क्या आप सबसे अच्छा दवाई क्या है आपको मालूम है? Love and companionship. और प्रेम और जो एकता है वो है। How many wives or husbands went through some sorts of sickness? और यहाँ पे कितने पति पत्नी है जो कोई बीमारी के अंदर से गया? Whose presence you like more? सबसे ज्यादा आपका जीवन में वो कष्ट का समय आपको किसका जरूरत था? किसको आप देखना चाहते Your हैं? husbands or your wives? आपका पति, आपका पत्नी को आप उस समय में अपना पास देखना चाहते थे। Many families may not be like this. बहुत से परिवार ऐसे नहीं हो सकते, But you can rebuild your family life. लेकिन आप अपने पारिवारिक जीवन को ऐसा बना सकते हैं। And when your wife come and sit on your bed, और जब आपका पत्नी आपके बेड में आकर बैठते हैं, she will massage your hand. तो आपका वो मसाज करेंगे, She will provide good tea for you. और आपको अच्छा चाय बनाकर पिलाएगी। That is not only tea, but it contains love of his wife. तो ये टी बस नहीं है, ये चाय में पूरा प्यार से भरा होगा। You will be all right within 2 days. और 2 दिन में आप पूरा ठीक हो जाओगे। Am I right? क्या ये ठीक है? We want to see such families coming up in Arunachal Pradesh. और हम ऐसे परिवार को इस अरुणाचल से उठना चाहते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Unnecessary divorces and quarrels and adulteries should go from families, and these types of family, the families according to the word of God, should come up in Arunachal Pradesh. और कोई जरूरत नहीं वाले लड़ाई झगड़ा डाइवोर्स और दूसरे लड़कियों के पीछे भागना, ये सब हमारे परिवार से जाना है। Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. And in such situations, ऐसे समय पर there will be submission one another. और एक दूसरे के पास हमें Some of the qualities coming there is submission. और उसमें बहुत से स्वभाव है जो आते हैं, आदर देना। One is submission. और हमें जो स्वभाव की जरूरत है एकता में होने के लिए, उसमें से 3 जो हम लिखेंगे अभी। एक है second is love. अधीन होना, दूसरा प्रेम, And the third is respect. और तीसरा है आदर देना। Amen. Submission. Everybody say submission. सब बोलिए सबमिशन। अधीन होना। बोलिए submission. सबमिशन, अधीन होना। Second, प्यार. And third, और respect. तीसरा है उसको Amen. आदर देना। Amen. Everybody say in English submission, सब बोलेंगे respect, रेस्पेक्ट, love. लव। These 3 qualities are written in these verses. और एफिशियो की जब हम लोग वर्सेस पढ़े एफिशियंस में ये सब इसके बारे में बताया गया है। Our time is up. I have to stop at least by 1 o'clock. जैसे कि हमारे समय बहुत गुजर गया है, 1 बजे मुझे ये मीटिंग खत्म करना है। Because according to the schedule, if I stop at 1 o'clock, the other programs will also go in order. तो क्योंकि मैं 1 बजे बंद करता हूँ, तो अगला जो प्रोग्राम भी ऑर्डर में जाएगा। But I have to teach many things more. और बहुत कुछ और पढ़ाने के लिए है। So at the evening session you come early and we will start early. और इवनिंग में आप जल्दी आइए, हम थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे। And this evening I am going to share about why many families only have girl children. और आज शाम के वक्त मैं ये खास कर सिखाऊंगा कि बहुत से परिवार में बस लड़की क्यों पैदा होते हैं। This is a big problem in Arunachal Pradesh. और ये अरुणाचल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। And because of this, many husbands are taking another wife. और इसी के कारण बहुत से पति लोग दूसरे लड़की को लेते हैं। And why girl children are born? क्यों जो लड़की बस होते हैं? Tonight I am going to explain. और इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। Suspense. और ये एक सस्पेंस में रखा है। Call all the other people and come for the evening तो meeting. कितने लोग को आप जानते हैं जिसका फैमिली प्रॉब्लम है, आप उनको बुलाइए। This big issue will be solved tonight. और ये बहुत जो बड़ा जो समस्या आज हम आपके बीच में सॉल्व हो जाएगा। Praise the Lord. Just I will explain these three things. Submission. और ये 3 बातों को अभी हम थोड़े देखेंगे। And पहला है अधीन होना। and first of all, it is written, wives submissive to your husbands. और खासकर पत्नी लोगों के लिए लिखा है कि पत्नियों अपने पति का अधीन रहो। This is a big order. ये बहुत ही एक अच्छा ऑर्डर है। Wives, you have to be submissive to your husbands. पत्नियों आप अपने पति का अधीन होना है। That submission will give you protection. तो वो जो आप अधीन होंगे तो वो आपको सुरक्षित देगा। See, we are there is a oneness between us. और हम में एक एकता है। I respect her. मैं उसका आदर करता हूँ। But there is a very good order also. She is submissive to me. लेकिन बहुत अच्छा एक ऑर्डर है कि मेरे पत्नी हरदम मेरे अधीन रहती है। After discussing with her, if I take a decision, she will not oppose. और हम कुछ बातों को जब डिस्कस कर कुछ उसका जब कुछ निकालते हैं ऐसा करना है, हरदम मेरे पत्नी उसका अधीन में रहती है। That is a beautiful order. बहुत ही सुंदर एक ऑर्डर है। This is not only wives has to submissive to husbands in one wider sense. Husbands also have a responsibility to submissive to your wives. और हम जो वचन में देखते हैं, वचन में खासकर महिलाओं के लिए लिखा है पत्नी लोग पति का अधीन में रहना है, लेकिन एक वाइडर सेंस में देखने से पति लोग भी पत्नी का अधीन में रहने से अच्छा है। The verse is Ephesians chapter 5 and verse 21. और इसके लिए हम पढ़ेंगे एफिशियंस का 5वां अध्याय उसका वर्स 25। In broader sense, it is written, submitting to one another in the fear of God. और इसमें ऐसा लिखा है परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन हो। Submitting to one another. एक दूसरे का अधीन होते हैं। So that one another comes between husbands and wives. Wife has to submit to husbands in a broader sense. Husband also have a responsibility to submit to his wife. और एक पत्नी जो पति का अधीन में होना है, और एक वाइडर सेंस में लेने से
पति भी पत्नी का अधीन में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहना है। And many wives are not submissive to their husbands. और बहुत से पत्नी लोग जो है अपना पति का अधीन में नहीं रहना चाहते हैं। This is a big problem. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। Everywhere we can see this problem. ये सब जगह हम लोग ये प्रॉब्लम को देख सकते हैं। They will go in their own way. और पत्नी लोग उसका जो रास्ता पसंद है ऐसा पत्नी लोग जाएगा। Not submissive to their husbands. उसका पति लोग क्या बोलते हैं उसको नहीं सुनेंगे। If such a nature is there in your life, अगर ऐसा स्वभाव आपके जीवन में है, today repent and obey the commandment of God. तो आज आप उस स्वभाव के लिए परमेश्वर से माफी मांगिए, वो स्वभाव को चेंज करने का निर्णय लीजिए। Be submissive to your husband. आपका पति के पास आपको आप सबमिसिव रहिए। The order comes like this: submissive to Jesus Christ. और जो पति है वो यीशु मसीह के अधीन में है। And under the husband comes the wife. और पति के अधीन में पत्नी है। When you are under submission, आप जब अधीन में होते हैं, you are protected. तब आपको सुरक्षित किया गया है। How many wives want surakshit? आप में कितने पत्नी लोग हैं जो आप सुरक्षा चाहते हैं? How कितने many, लोग हैं? how हाथ many of you उठाइए। want to be protected? कितने लोग हैं जो सुरक्षा चाहते हैं? If you want to be protected, be submissive to your husband. तो आप सुरक्षा चाहते हैं तो आप अपने पति का अधीन में रहिए। And yesterday I taught you about receiving. और कल हमने एक दूसरे को ग्रहण करने के बारे में पढ़ाया। Many people are not submissive to their husband because they think that this was a wrong marriage. और बहुत लोग जो अपने पति का अधीन में नहीं रहते क्योंकि वो एक दूसरे को ग्रहण नहीं किया है, और पत्नी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे लिए सही आदमी नहीं था। Engineer married a doctor. इंजीनियर डॉक्टर को शादी किया, And the engineer lady is telling every day, oh, I married this doctor, that's why all these problems. तो ये इंजीनियर औरत कहती है मैंने डॉक्टर से शादी किया इसलिए ये पूरा समस्या मेरे जीवन में Because of है। that reason, she is not submissive to her husband. उसी के कारण ये पत्नी पति का अधीन में नहीं रहना Don't चाहती। destroy your family life. आपका पारिवारिक जीवन ऐसा नाश मत कीजिए। You will be out of protection. आप अगर अधीन में नहीं होते तो क्या होता है, आप वो सुरक्षित रूप में से बाहर निकल जाते हैं। Satan will destroy your life. तब सैतान आकर आपको अटैक करेगा, आपको खत्म करेगा। All kinds of sickness will come in your life. सब तरह की बीमारी आपके अंदर आ जाएगी। Satan will, in one sense, you will lose your health, good health. और आपका जो अच्छा जो स्वास्थ्य है, आपका जो अच्छा जो तंदुरुस्ती है वो आप खोएंगे। But on the other hand, if you are under the submission of your husband, लेकिन आप दूसरी जगह जब आपके पति के अधीन में रहते हैं you will be protected. तब आप सुरक्षित रूप में पाओगे। In our family life, हमारे पारिवारिक जीवन में this order, we are following this order. और हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। And she has many experiences. और मेरे पत्नी को बहुत से एक्सपीरियंस उसके जीवन में है। Many times she had some sicknesses or some problems. और कई बार मेरे पत्नी को जब कुछ बीमारी होती है I'll pray for her. और मेरे पति मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। And I saw most of the times Jesus coming and healing her. और बहुत बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह आकर मेरे पत्नी को चंगाई देती है। Praise the Lord. And husbands, be under the submission of Jesus Christ. और उसी प्रकार पति लोग यीशु मसीह के अधीन में रहना है, You will be protected. तब आप सुरक्षित होंगे। Praise the Lord. The second thing is love. और दूसरी बात है प्रेम, प्यार। Husbands, you have to love your wives. और पति लोग से खास कर कहते हैं कि आप अपने पत्नी को प्रेम करें, प्यार करें। Amen. Hallelujah. And ladies, you know, they are more emotional. आप जानते हैं ये जो महिला है, जो स्त्री है, वो बहुत ही इमोशनल है। Emotional. They means that they seek for love. उन लोग को बहुत प्यार चाहिए। बहुत प्यार चाहिए. ये औरत लोग को बहुत प्यार चाहिए। It's normal, absolutely normal. ये उनका स्वभाव है। They need love. उनको बहुत प्यार चाहिए। His husband will see the TV and take the cup of tea and he is concerned about that thing, this thing, all things. He may not get time to love his wife.
और ये हस्बैंड पूरा समय टीवी देखते रहता है, चाय पीते रहता है, पत्नी का क्या दुख तकलीफ है कुछ सोचता ही नहीं। She will come with all humility to her husband. और ये पत्नी पूरा अच्छा से पति के पास आएगा। Go, go. तो पति बोले "ए, जाओ अभी समय नहीं है। Watching the TV. वो तो टीवी देख रहा है। Turn off your TV. आप टीवी को ऑफ कीजिए, Sit with your wife. आपका पत्नी के पास बैठिए Tell your wife, I love you. और अपने पत्नी से बोलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। Amen. Praise the Lord. Many men are going here and there and telling to many ladies, I love you, but never telling to their wives that I love you. और बहुत आदमी लोग इधर उधर जाकर लड़कियों को बोलते हैं कि आई लव यू, लेकिन अपने पत्नी से एक बार भी नहीं बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। Best love affair is between husbands and wives. और सबसे अच्छा जो लव अफेयर है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में होना है, Because the whole life we can love. क्योंकि हम पूरा जिंदगी हम एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं। Amen. I'll tell you 4 languages of love. और मैं आज आपको ये प्यार का 4 भाषा को सिखाऊंगा। One, you can talk your love or you can speak your love. प्यार का एक लैंग्वेज है जिसमें आप बात कर सकते हैं, आपस में बात करना, बोलना। प्यार का बात बोलो। प्यार का बात बोलना है। हाथ पकड़ कर पड़ोसी के बोलो, प्यार का बात बोलो। आपस में बोलिए, प्यार का बात बोलना है। Tell your wife, I love you. और आप अपने पत्नी से बोलिए कि मैं आपको प्यार करता हूँ। See, during our initial years, और हमारे शादी के पहले दिनों में I was so spiritual man. मैं बहुत ही आत्मिक था I will close my room and sit inside my room and pray and study the word. और of मैं God. हरदम रूम को लॉक कर अंदर बैठ कर प्रार्थना बाइबल पढ़ते रहता था। She will come and knock at my door. और मेरे डोर में आकर मेरी बीबी ऐसे नॉक करता था। And I will ask, who is outside? तो मैं पूछूंगा कि बाहर कौन है। So that was very painful to her. तो ये मेरी बीबी को बहुत दर्द होता था, Because she felt that she is rejected. तो उनको ऐसा लगा कि उनको मेरे पति को मुझे नहीं चाहिए। And sometime she will come and tell me that you please tell me I love you. तो मेरे पत्नी मेरे पास आकर कभी बोलते कि आप थोड़ा बोलिए कि आई लव यू कर आप थोड़ा बोलिए। And I thought that what is the need of telling I love you? Because we are already married. तो मैंने सोचा कि मेरे पत्नी से बार बार आई लव यू बोलने का क्या जरूरत है, हम तो अभी शादी हो गए हमारा। I am her husband and she has to understand that I love her. तो मैं तो उनका पति हूँ और मेरे पत्नी को जानना है कि मैं उसको प्यार करता हूँ। Then I understood the nature of ladies. तब मुझे ये जो औरत लोग का जो स्वभाव है उसको समझ में आया। They want to hear उनको ये सुनना है I love you. आई लव यू कर। Wise husbands, if you want good food, start saying to your wife I love you. तो आप में जो अच्छा जो पति लोग है, आपको अच्छा खाना चाहिए तो रोज अपना पत्नी को आई लव यू कर बोलिए। And the second language of love is presence. और दूसरा जो प्यार का जो भाषा है वो पास में रहना। See, that is my language. वो मेरा लैंग्वेज है। Her language is spoken language. और मेरा जो पत्नी क्या चाहता है कि वो हरदम मुझसे बात करे। So you have to understand the language of your wife. तो आपको अपना पत्नी का लैंग्वेज समझना है। My language is that I want her presence in my room. और मैं चाहता हूँ कि मेरे पत्नी मेरे रूम में हो। So when I was taking a tea, जब मैं चाय पीता हूँ I just want she to be next to me, sitting there. I don't want to talk anything to her, but I just want her presence. तो मैं जब चाय पीता हूँ मैं उससे कुछ बात बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरी बीवी बस उधर बैठना है मेरे पास। Always it happens. और हरदम ये होता है। So finally she will request me, there is so much work in the kitchen, will you allow me to go to kitchen? तो ऐसा कभी होता है, इतना काम किचन में होता है तो पूछना पड़ता है कि बहुत काम पड़ा है, क्या मैं जा सकता हूँ? That is another language. वो दूसरा एक लैंग्वेज है। Presence. प्रेजेंस। Sit with your husband. आप अपने पति के पास बैठिए। Sit with your wife. आप अपने पत्नी के पास बैठिए। Walk together. आप एक साथ चलिए। This is one part. The other part I will discuss tomorrow. और ये एक भाषा है, अगला बात को मैं कल बताऊंगा। Ladies are more interested in such things. और जो औरत लोग है ये सब बातों में बहुत ही उन लोग को अच्छा लगता है। They want to hear
उनको सुनना है, they want to touch, उनको छूना है, they want to walk together, वो एक साथ चलना चाहते they हैं, want to travel together. एक साथ यात्रा करना चाहते हैं। Praise the Lord. Praise- This is the second language of love. ये दूसरा लैंग्वेज है प्रेम का, And the third is language of gift. और तीसरा है गिफ्ट देने का, तोहफा Amen. देने का। On the day of her birthday, give some good gifts to your wife. आपका पत्नी का बर्थडे के दिन कोई अच्छा सा तोहफा उसको खरीद के दीजिए, And on the birthday of your husband, give a good gift to your husband. और आपके पति के बर्थडे में अच्छा गिफ्ट उसको दीजिए। And the fourth love language, और अच्छा चौथा जो लव लैंग्वेज है, doing a work for your wife or husband. और आप कुछ अच्छा काम अपना पति के लिए या पत्नी के लिए कुछ अच्छा काम कीजिए। So brooming is the duty of your wife, आपका पत्नी का काम है घर पूरा झाड़ू करना, but she is working in the kitchen. वो अभी किचन में काम कर रही है। I love my wife, मैं मेरे पत्नी को प्यार करता हूँ, so I am brooming the room. तो हम झाड़ू लेकर झाड़ू करने के लिए लग गए। Washing is the duty of the wife, और कपड़ा धोना मेरा बीबी का काम है। but I love my wife. मैं अपने पत्नी से प्यार करता She हूँ, is working so much in the kitchen, उसको बहुत काम है किचन में, so I myself wash the clothes. तो मैं अपना कपड़ा खुद धो लिया। Doing a good work for your spouse, through that you can express your love. आप अपने पति के लिए या पत्नी के लिए कुछ अच्छा काम करने से आपका प्यार दूसरे के लिए दिखा सकते हैं। And finally, respect. और सबसे अंत में है कि आपको एक दूसरे का आदर करना है, Both need respect. और पति को पत्नी को दोनों को आदर चाहिए, And mainly more husbands need respect. और ज्यादा जो पति लोग हैं उनको आदर चाहिए। In many families, बहुत से परिवारों this is में a major problem. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। There is a conclusion because of living together for many years. They will conclude one another, oh, my husband is useless. और बहुत साल एक साथ रहने से एक ऐसा भावना आ जाता है कि मेरा जो पति है कोई काम का नहीं है, So everything about me, my wife knows very well. और मेरे पति के बारे में सब कुछ मेरे पत्नी जानती है। How I am in the home, she knows very well. कैसे वो घर में है वो जानता है। Many families living together for many years, husband doesn't have any respect for her wife and wife doesn't have any respect for her husband. और कई परिवारों में पति को पत्नी के लिए कोई आदर नहीं है, पत्नी को पति के लिए कोई आदर नहीं है। And when public comes, और कब कोई बाहर से लोग भी आते हैं, they will accuse one another. एक दूसरे को गाली बोलने शुरू हो जाएंगे। Husband will say, oh, my wife, she is a number one fool. और पति लोग ऐसे सबका सामने बोलेगा, मेरा पत्नी वो तो बहुत बड़ा बुद्धू है। The other day she made a beef boil. It was like useless. She even doesn't know how to cook. Publicly he is making such statements. और सबका सामने बोलेंगे, मेरे बीबी अच्छा खाना भी नहीं बनाना चाहता है, बॉयल कुछ बनाने के लिए उसको नहीं मालूम है। And what is the result? तो उसका नतीजा क्या है? You never speak such things in public. आप कभी भी दूसरे आदमी लोग का सामने अपना परिवार का बात ऐसा नहीं बोलना It is है। better to take a knife and kill your wife इससे अच्छा होगा कि आप एक चाकू लेकर आपका बीबी को मार दें, than to speak such things. और सबके लोगों के सामने ऐसा बीबी के बारे में बोलने से ये तो अच्छा होगा। Almost like that. ये उसी प्रकार है। Always appreciate your wife in public places. हर जितना आदमी लोग आते हैं पब्लिक में, आपका पत्नी का हरदम आप उसका बड़ाई करना है। Amen. And if there is any problem with your wife, talk to her personally, even not in the presence of your children. और आपका बीबी को, आपका पत्नी को कुछ प्रॉब्लम है, आप इवन बच्चों को भी दूर कर कर उससे खुद जाकर अकेले में उससे बात कीजिए। And wives, in public places, do not disregard your husbands or make any wrong statements, evil statements against your husbands. और पत्नी लोग कभी भी अपने पति के बारे में दूसरे किसी व्यक्ति के सामने उनको कुछ बोलना नहीं है, उनका बातों को, कुछ खराब बातों को नहीं बोलना है। Once I was in a house और मैं एक बार एक घर में गया, and wife was telling about her husband. और जो वहाँ की जो पत्नी था वो पति के बारे में बोल रहा है, Husband was sitting there और जो पति है उधर बैठा हुआ है, and she said that my husband is now learning driving.
और मेरा जो पति है वो अभी ड्राइविंग सीखता है। Many days he is trying. बहुत दिनों से वो सीख रहा है, No use. कोई उपयोग नहीं है। Publicly. सबका सामने बोलता है, Not respecting her husband. उसका पति को आदर नहीं करता है। What will be the result? उसका क्या नतीजा होगा? Family life is in problem. और जो पारिवारिक जीवन है, उनका जो प्यार है वो एकदम प्रॉब्लम में हो जाएगा। Uproar and storms and wind and waves in family life. और उनके घर में ऐसा आंधी तूफान, इधर उधर टूटना फूटना सब शुरू हो But जाएगा। on the other hand, लेकिन दूसरे हाथ में if you start respecting one another, आप एक दूसरे का आदर करने लगेंगे, submissive to one another, एक दूसरे का अधीन में होने लगेंगे, loving one another, एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे, coming to that oneness, आप उस एकता में आ जाएंगे, coming to that one language, वो एक ही भाषा में जब आप आ जाएंगे, to that level of one body. वो एक तन होने का उसमें आ जाएंगे। Let's close our हम eyes. अपने आंखों को बंद करेंगे। Stand on our feet. आप सब अपने पैरों पर खड़ा हो जाइए। Let's ask the Lord. हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। Mainly two things I taught you today. आज दो बातों को मैंने आपको सिखाया है। Heaven on earth. Heaven on earth. इस धरती में स्वर्ग होना, One body. एक शरीर होना, And the rest of the things I will be teaching tonight. और इसके बाकी के बारे में शाम को मैं आपको सिखाऊंगा। Ask the Lord, Lord, make our family life heaven on earth. और आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मेरे परिवार को इस धरती पे एक स्वर्ग बनाइए, Make us one flesh. हमें एक तन बनाइए। Everybody pray. सब प्रार्थना कीजिए। Yes, hallelujah. Lord, make our family heaven on earth. प्रभु जी हमारे परिवार को इस धरती में एक स्वर्ग बना दीजिए। Make us one flesh, Lord. हमें एक तन बनाइए। Everybody start speaking in other language. अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कीजिए।